Hello everyone. Today I'll be speaking about micropropagation और clonal propagation. Hello students, आज हम micropropagation या फिर clonal propagation के बारे में बात करेंगे. Micropropagation word itself refers to that when we are taking a plant as a explant which is micro or small in size and generate so many identical copies of the same explant, we called it micropropagation और clonal propagation. Micropropagation शब्द अपने आप में दो शब्दों से मिलकर बना है, micro and propagation. माइक्रो का मतलब जब हम प्लांट को एक एक्स प्लांट की फॉर्म में छोटे आकार में लेते हैं और उससे बहुत सारी एक जैसे प्लांटलेट्स बनाते हैं, जेनरेट करते हैं, उसे अपन माइक्रो प्रोपगेशन कहते हैं. Plants can be propagated by two modes or two means. One is sexual reproduction and another one is asexual reproduction. Plants जो है वो दो तरीके से propagate कर सकता है, ये आप सभी जानते हैं, sexual reproduction और asexual reproduction के through. So clonal propagation means the process of asexual reproduction by which multiplication of genetically identical copies of individual plant generated. सो क्लोनल प्रोपगेशन का मतलब क्या होता है कि जब प्लांट एसेक्सुअल मेथड के थ्रू बहुत सारी एक जैसी आइडेंटिकल कॉपीज़ जनरेट करे किसी भी इंडिविजुअल प्लांट की, वह क्लोनल प्रोपगेशन के नाम से जाना जाता है. और जो टर्म क्लोन होती है वो उस प्लांट पॉपुलेशन के एक सिंगल इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करती है जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बनाया गया है. Now, asexual reproduction through multiplication of vegetative part is only method of in vivo propagation, as the plants which do not produce viable seeds like banana, grapes, fig and chrysanthemum, we follow this asexual reproduction method in vivo condition. Plant जो है वो वाले plants जिनके अंदर बीज नहीं बनते हैं, जैसे कि बनाना हो गया, ग्रेप्स है या फिग है, क्राइसेंथेमम है, वहाँ पर प्लांट्स जो हैं इन वीवो, जब अपन बात करें नेचर के अंदर प्रोपोगेट करने के लिए, हम एसेक्सुअल मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें वेजिटेटिव पार्ट्स को आप कट करते हो और उससे एक नया प्लांटलेट बनाते हो. बट if we are talking about in vitro condition, that means in laboratory condition, so clonal propagation is the best practice for the propagation of such kind of seedless plants, or we can also propagate some ornamental plants by this clonal propagation. पर अगर हम लेबोरेटरी कंडीशन के अंदर प्लांट्स की बनाने की बात करें तो क्लोनल प्रोपगेशन एक बहुत अच्छा मेथड है. और उन सारे प्लांट्स में जिनमें सीड्स नहीं होते, हम इन विट्रो कंडीशन के अंदर, लेबोरेटरी कंडीशन के अंदर क्लोनल प्रोपगेशन की मदद से बहुत सारे प्लांटलेट्स बना सकते हैं. नाउ माइक्रो प्रोपगेशन मीन्स इट इज़ द वेजिटेटिव प्रोपगेशन under in vitro condition, but here the conditions are maintained like light, temperature, न्यूट्रिएंट मीडिया एक्सेट्रा. माइक्रो प्रोपगेशन आपको पता है, अभी अभी मैंने बताया कि ये एक वेजिटेटिव प्रोपगेशन का तरीका है, बट तरीका इन विट्रो होता है. पर यहाँ पर कंडीशंस जो होती हैं वो हमें कंट्रोल करके रखनी होती है, जैसे कि लाइट की इंटेंसिटी कितनी होगी, टेम्परेचर कितना होगा, न्यूट्रिएंट मीडिया जो कि एक्सप्लांट के लिए नरिशमेंट होता है वो किस तरीके का होगा, उसमें कैसे हार्मोनल सप्लीमेंट होंगे एक्सेट्रा. सो दिस टेक्निक हैज़ बीन अप्लाइड to a sustainable number of commercially vegetative propagated plant species. It is handy technique and for rapid multiplication of plants. So जो micro propagation की टेक्निक है ये कमर्शियल वेजिटेटिव प्लांट्स के लिए बहुत अच्छी है और हैंडी टेक्निक है रैपिड मल्टीप्लिकेशन के लिए. So now you can see this is a diagram where I can explain the whole process of micro propagation. First of all, we have taken a small part of a leaf as explant, and then that explant will be cultured on a media, that is callus induction media. You can easily see here that callus is formed. Now we took a small piece of the part of that callus and transfer it on shoot stimulating hormone nutrient agar
you can see when you are transferring shoot stimulating hormone, the explant on shoot stimulating hormone, shoot emerges out, then we are transferring it on root stimulating hormone. Now root is emerging out, the complete plantlet is generated inside the test tube. Now you can transfer this plantlet first of all in the greenhouse or in the controlled condition for few days, when and you can see when it is well survived, then you will transfer it into the field. स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर माइक्रो प्रोपगेशन का पूरा तरीका देख सकते हो, जिसमें सबसे पहले हमने एक लीफ का छोटा सा पार्ट लिया है जिसे हम एक्सप्लांट बोल रहे हैं, और इस एक्सप्लांट से सबसे पहले हमने इसे कैलस इंडक्शन मीडिया के ऊपर रखा, कैलस बन गया है। उस कैलस का एक छोटा सा पार्ट हमने लिया और उसे एक दूसरी ट्यूब के अंदर, जिसमें शूट स्टिमुलेटिंग न्यूट्रिएंट अगार था, वहाँ पर आपने डाला, तो हमने देखा कि शूट बनना शुरू हो गई हैं। फिर हमने उस प्लांटलेट को रूट स्टिमुलेटिंग न्यूट्रिएंट अगार के ऊपर ट्रांसफ़र किया, तो रूट भी बनना शुरू हो गई और कंप्लीट प्लांटलेट जनरेट हो गया आपकी ट्यूब के अंदर। अब हम इसे सबसे पहले ग्रीन हाउस के अंदर कंट्रोल्ड कंडीशन में पॉटेड पॉट के अंदर पॉटेड प्लांट के फॉर्म में इसे रखेंगे, और उसके बाद इसे हम थोड़े दिन ऑब्जर्व करने के बाद फील्ड के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। सो देर आर सो मेनी एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, और we are talking about asexual reproduction. First is what? The faster multiplication. Large number of plants can be produced with a single individual in very short period. Possible to produce genetically identical plants. जब हमें एक जैसे से plant बनाने होते हैं genetical, तो you can go for vegetative propagation. Then sexually derived sterile hybrid can be propagated. Seed raised plant pass through an undesirable juvenile phase which is avoidable in sexual propagation. So जब हम plants को सीडलेस प्लांट्स को बना रहे होते हैं, तो प्लांट्स का जो रेस्टिंग फेज़ होता है उसको आप अनडिज़ायरेबल जुवेनाइल फेज़ को अवॉइड कर सकते हैं। जीन बैंक्स को यू कैन ईजिली इस्टेब्लिश बाय क्लोनल प्रोपगेटेड प्लांट्स. Now in vitro clonal propagation, it is little bit tedious, expensive and frequently unsuccessful. जब अपन इन विट्रो क्लोनल प्रोपगेशन या फिर माइक्रो प्रोपगेशन की बात करते हैं, तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, थोड़ा उसमें मेहनत लगती है, कई बार हमें प्रॉपर रिजल्ट्स भी नहीं मिल पाते हैं. इन विट्रो क्लोनल प्रोपगेशन थ्रू टिश्यू कल्चर वी कॉल्ड इट माइक्रो प्रोपगेशन. ये मैंने आपको अभी अभी पहले ही बताया है. यूज़ ऑफ टिश्यू कल्चर टेक्निक फॉर माइक्रो प्रोपगेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड बाय अ साइंटिस्ट, we called him Morel in 1960, and he propagated orchid plants for this. And then nowadays we can develop several plants by the help of micro propagation. जो micro propagation की टेक्निक है वो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे मॉरेल ने ऑर्किड प्लांट्स के ऊपर, विच इज़ अ ऑर्नामेंटल प्लांट, उसके ऊपर किया था. अभी अपन बहुत सारे प्लांट्स बनाते हैं. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेजेस ऑफ माइक्रो प्रोपगेशन. माइक्रो प्रोपगेशन की बेटा बेसिकली 4 स्टेजेस होती हैं. फर्स्ट स्टेज की अगर अपन बात करें तो दिस इज़ द इनिशियल स्टेप ऑफ माइक्रो प्रोपगेशन दैट इन्वॉल्व्स selection and growth of stock plant for about 3 months under controlled condition. आपका सबसे पहला काम होता है किसी भी प्रोसेस को शुरू करने से पहले सिलेक्शन. तो यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन वाला पार्ट है वो है एक्स प्लांट का सिलेक्शन. और ये हमें ध्यान रखना है कि आप एक्स प्लांट को जब सेलेक्ट कर रहे हैं तो दैट शुड बी हेल्दी, ताकि वो बहुत अच्छे से प्रोपगेट कर सके. इसलिए हम जो प्लांट लेते हैं वो अपने स्टॉक प्लांट के अंदर, या वो जो कंट्रोल्ड कंडीशन के अंदर 3 महीने से प्लांट्स रखे हुए हैं, वहाँ से हम प्लांट को एज अ एक्स प्लांट पिक करते हैं. फिर हम बात करते हैं स्टेज 1 का. In this stage, the initiation and establishment of culture in suitable medium are achieved. That means आपने जो भी एक्सप्लांट रखा है उसने अपने आप को फर्स्ट स्टेज के अंदर अपने आप को अच्छे से एक्लेमेटाइज कर लिया है उस इन्वामेंट में. एंड द सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट एक्सप्लांट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अभी अभी मैंने आपको बताया था कि एक्सप्लांट शुड बी ऑलवेज हेल्दी, अदरवाइज़ हमें उसके प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे. जनरली जो एक्सप्लांट का पार्ट हम लेते हैं दैट इज़ शूट टिप एंड एक्सिलरी बड. एंड आफ्टर टेकिंग एक्सप्लांट
और आफ्टर चोजन एक्सप्लांट सबसे पहले हमें उसकी सरफेस को स्टेरिलाइज करना होता है, वॉश करना होता है, सो दैट कंटामिनेशन के जो चांसेस हैं या जर्म्स जो हैं उसकी सरफेस से वो कम्प्लीटली रिमूव हो जाए. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट स्टेज. द मेजॉरिटी of the plants in this stage involves multiplication of shoot or rapid embryo formation for the explant. This is the very important part of micropropagation, where you are watching that your explant is converted into either in callus or in shoot tip or in root formation. So यहाँ पर आप ये नोटिस करेंगे कि आपका जो एक्सप्लांट है आपने उसको किस तरीके के मीडिया के ऊपर रखा है, किस तरीके के हार्मोनल सप्लीमेंटेड मीडिया के ऊपर रखा है, और उस वजह से वो अलग अलग तरीके के फॉर्मेशंस में कन्वर्ट हो जाता है. अगर आपने कैलस बनाया है तो पहले कैलस बनेगा, फिर आप उससे शूट टिप बनाएंगे, रूट टिप बनाएंगे और पूरा प्लांट बन जाएगा. पर ये सारी चीज़ें एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर होती हैं, एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट in vitro condition requires controlled condition like high intensity of light. Here we are giving 2000 to 400 lux light intensity, appropriate temperature that is somewhere 20 to 24 degrees centigrade, and lightening period that is 16 hour, and so on. And it depends upon the variety of the plant, which plant you have taken as a explant. Then we have the last stage. In this stage, transfer of shoots to a medium for rapid development into shoots. Suppose हमारा प्लांटलेट बन गया है ट्यूब के अंदर. अब हमें उसको मल्टीप्लिकेशन के लिए, ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन के लिए दूसरे शूट इंडक्शन मीडिया के ऊपर ट्रांसफ़र करना होता है, और वहीं से हम उसे सॉइल के अंदर, बट हेयर वी आर यूजिंग स्टेराइल सॉइल इन ग्रीन हाउस. सो आप उसको ग्रीन हाउस के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं, एंड देन जब ग्रीन हाउस के अंदर आपका प्लांट बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स दे रहा है, वी विल ट्रांसफ़र इट इनटू द फील्ड. नाउ दिस इज़ द लास्ट स्टेज वेयर establishment of plantlet in soil, and this is done by transferring the plantlet of stage 3 from the laboratory. That means जो हमने फील्ड में ट्रांसफ़र किया है वो ग्रीन हाउस के बाद वाला स्टेज ये आ रहा है आपका. दिस इज़ द stages in tabular format, where we are talking about 5 stages from 0 to 4 and the methodology involved in those stages. This is again a diagram which is showing the stages of micropropagation. ये वही डायग्राम है जिसमें माइक्रोप्रोपगेशन की आप देखिए चारों स्टेजेस को दिखाया गया है. ये एक फ्लो चार्ट है जिसमें हमने बात किया